إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 تا 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، سو انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد کتاب صلاۃ السفر حدیث نمبر 1249 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کر رہا تھا، اور وہ انہیں عرنا یا عرفات میں نظر آ گیا جہاں عبداللہ بن انیس کا چہرہ کعبہ کی مخالف سمت تھا۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز فوت ہونے کے خدشے کے پیش نظر دشمن کی طرف چلتے چلتے نماز پڑھ لی، پھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ وہ رخ کسی جانب بھی ہو۔
चनाचे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का से मदीना की तरफ आते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर नफल पढ़ते रहते थे, उसका रुख जिधर भी होता। फरमाते हैं इसी के बारे में ये आयत उतरी, फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी मुँह करोगे उसी तरफ अल्लाह का चेहरा है। ये हदीस सही मुस्लिम में सलातुल मुसाफिरीन बाब जवाज़ नाफिला के अंदर मौजूद है। फ़अय्नमा तुवल्लू का एक माना हैसुमा तुवल्लू भी है, जहाँ भी तुम रुख कर लो वो दुरुस्त है। ये मुजाहिद का कौल है। इस सूरत में भी इसका ताल्लुक़ पहली आयत से है, यानी अगर तुम्हें अल्लाह की मस्जिदों से रोक दिया जाए तो तुम जिस जगह भी हो नमाज पढ़ लो। आयत नंबर 116 में फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। अल्लाह ताला ने उन लोगों का कौल ज़िक्र किया है जिन्होंने अल्लाह की ज़ात के लिए औलाद साबित करने की कोशिश की। फरमाया सुबहाना, वो तो पाक है, उसे इस किस्म की कमी और ऐब की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आसमानों में ज़मीनों में जो कुछ है वो उसी का है और सब उसी के फर्मा बरदार हैं। अल्लाह की मस्जिदों से रोकने वालों का ये एक और जुल्म बयान किया। फरमाया कि उन्होंने कहा है अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है। चनाचे यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को, नसारा ने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। इसी तरह मुशरिकीन अरब ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। अल्लाह ताला ने कई तरह से इसका रद्द फरमाया। पहले सुबहानहू कहा कि ये तो मोहताजी है और मोहताजी की दलील है, अल्लाह इस मोहताजी से पाक है। इसी तरह की एक बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 111 में भी फरमाई है। दूसरी बात यह कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सब शामिल हैं। मालिक और ममलूक बाप बेटा कैसे हो सकते हैं? बेटा तो बाप का ममलूक भी बन जाए तो खुद ब खुद आज़ाद हो जाता है। तीसरा ये कि बेटा सरकशी भी कर सकता है, जबकि आसमान और ज़मीन में रहने वाले सब अल्लाह के फर्मा बरदार और ताबे हैं, उनका सांस भी उसके हुक्म के बग़ैर नहीं चलता। बदियुस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। आयत नंबर 117 में फरमाया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बग़ैर किसी नमूने के नए सिरे से पैदा किया है, और जब वो किसी काम को करने का इरादा फरमा ले तो वो कुन उसके यानी हो जाने का आर्डर करता है, फ़यकून तो वो हो जाता है। बदी बमाना मुब्दिउन यानी आसमान और ज़मीन को बग़ैर किसी मादे के, किसी नमूने के पैदा करने वाला। ये चौथी दलील है, क्योंकि बेटा बाप का नमूना होता है, जबकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को नमूने के बग़ैर पैदा किया है। पांचवी दलील है कि जिसके कुन के कहने से सब कुछ हो जाता है, उसे औलाद की मोहताजी की क्या ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ और लोगों को अल्लाह के नूर का टुकड़ा करार दिया है। ये औलाद करार देने से भी बड़ा जुल्म है। इस हवाले से आप सूरा अल इखलास का जो है वो मफ़हूम समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह समझने के बाद अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आइए अब हम इसके तर्जमे को समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मिसबाहुल कुरान, जिसमें पहला उसलूब तर्जुमा कुरान बज़रिया अलामात है। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है। लम्ज़ ली का माना के लिए। अल मशरिकु मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब। फ़अय्नमा पस जिधर या जहाँ कहीं, तुवल्लू तुम सब रुख करोगे, मुँह फेरोगे। तुवल्लू की ता का माना तुम है, या ता हमज़ा नून आपने पढ़ा हुआ है, ता का माना तुम होता है। फसम्मा तो उधर, फ़ा का माना तो और सम्मा का माना उधर। वजहुल्लाही अल्लाह की ज़ात है, लफ्ज़ी माना है अल्लाह का चेहरा है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला वासिउन वुसअत वाला, अलीमुन बहुत इल्म वाला है। वक़ालू और उन सब ने कहा, कालू में वाव अलिफ जमा मुज़क्कर की अलामत है। वाव अलिफ, वाव नून और या नून तीन जमा मुज़क्कर की अलामत आप मुअल्लिमुल कुरान में पढ़ चुके हैं। तो वाव अलिफ का तर्जमा सब,
क़ालू, उन सब ने कहा, ये लफ्ज़ कौल से निकला है। इत्तख़ज़ल्लाहु, अल्लाह रखता है, अल्लाह ने बना लिया है, अल्लाह ने पकड़ लिया है। तीनों तर्जमे दुरुस्त हैं। और इत्तख़ज़ा अख़ज़ से निकला है। अख़ज़ माख़ूज़ मुआख़ज़ा पकड़ने के माना में उर्दू में बोला जाता है। वलदन औलाद, सुब्हानहु, वो पाक है इस कमी कोताही से कि वो औलाद को बनाए पकड़े। बल्कि लहू, उसी का है, मा, जो कुछ, फिस समावाती, आसमानों में है। असमावात जमा है समा उनकी, और इसके आखिर में जो खड़ी ज़बर पर गोलदारा है ये अलिफ के कायम मकाम है, और आखिर में ता है। अलिफ और लंबी ता जमा मुअन्नस की अलामत होती है। ये समा उनकी जमा है समावात, और ये जमा मुअन्नस का इसमें तसव्वुर है, लेकिन इस अलिफ और लंबी ता का उर्दू ज़बान में तर्जमा नहीं होता। फिस समावाती, आसमानों में, वल अर्दी, और ज़मीन में है। कुल्लुन, तमाम, लहू, उसी के लिए, क़ानितून, फरमा बरदार हैं। वाव नून का तर्जमा सब, क़ानितुन, फरमा बरदारी करने वाले। बदियु, मुजिद है, नए सिरे से पैदा करने वाला है। अस्समावाती, आसमानों का, वल अर्दी, और ज़मीन का। व इज़ा क़ज़ा, और जब वो फ़ैसला कर ले, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक, यकूलु, वो कहता है, लहू, उसको, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। दूसरा उसलूब, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिकु, मशरिक, वल मगरिबु, और मगरिब। फ़इन्नमा, तो जिधर, तुवल्लु, तुम सब मुँह फेरो, रुख करो, फसम्मा, तो उधर, वजहुल्लाही, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की ज़ात है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वासिउन, वुसअत वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है, या बहुत इल्म वाला है। वक़ालू, और उन सब ने कहा, इत्तख़ज़ल्लाहु, बना लिया है, पकड़ लिया है अल्लाह ताला ने, वलदन, औलाद को। सुब्हानहु, वो पाक है इस कमी कोताही से। बल्कि लहू, उसी का है, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है। कुल्लुन, तमाम, लहू, उसी के लिए, क़ानितून, फरमा बरदारी करने वाले हैं। बदीउ समावात, नए सिरे से पैदा करने वाला है, असमावाती, आसमानों को, वल अर्दी, और ज़मीन को। व इज़ा क़ज़ा, और जब वो फ़ैसला कर ले, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक, यकूलु, वो कहता है, लहू, उसको, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। हमारे आज के सबक में कुल 2 अल्फाज हैं जो आपने याद करने हैं। तुवल्लु, तुम मुँह फेरो, तुम रुख करो। क़ानितून, फरमा बरदारी करने वाले। बकिया तमाम अल्फाज उर्दू ज़बान में बोले जाते हैं या चंद एक बार बार आने वाले अल्फाज में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सेहत व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी मांगिए। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।